Hello, guys, and welcome to Cricket Caviar. First semi-final is done and dusted. It was quite anticlimactic, but I must say, South Africa, after years and years of struggle, after years of being called chokers, semi-final chokers, 7 World Cup semi-finals, they did not get through any of them. Finally, they have gone through the semi-final, and it's a historic day for cricket because one of the biggest jinx in cricketing world is broken today, and South Africa very deservingly, probably the most deservingly throughout the history, now has finally, they can play a World Cup final. They have done it in women's cricket, but it was the first time in men's cricket that South Africa is playing a World Cup final. Of course, Champions Trophy is not a World Cup. Please, Pakistanis, please understand. But this is historic, man. And I know Pratik will be very disappointed today. He is devastated. I can understand. But Pratik, this pitch was always going to be like that. We have seen Lockie Ferguson bowl a spell without a run on this kind of pitch. There was variable bounce. There was a lot of pace and zip through the surface. What happened? What did you think happened there? Congrats to South Africa, the pitch, and Richard Illingworth. But yeah, it was unplayable. I wish West Indies had invited Afghanistan for a three-match Test series to show them this kind of pitch exists. This is something which they have never done before. So Afghanistan has never played on such a surface. This was not a great advertisement for T20 cricket, to be honest. Had it was a good pitch, we would have at least seen a closer match. Um, so yeah, this was just alien conditions for South Africa. This was Afghanistan. This was a test match pitch, a very dangerous test match pitch, and not a close to any T20 game pitch. It's easy to blame the conditions and everything, but you have to agree that we probably overestimated Afghanistan overall. This was like a really easy win for South Africa overall, and they made so many records. This was the biggest win for South Africa yet. This was the biggest loss to Afghanistan yet in T20s overall. Probably the shortest T20 knockout match we've ever seen. So I believe, yeah, that probably Afghanistan were overestimated. I mean, yeah, they did really well to come all the way here and qualify for the semifinals. That was a big achievement in itself. But yeah, probably we overestimated the team. Afghanistan is not that great, maybe after all. Even the last win was against Bangladesh was not, that easy. But yeah, really like what Shikhar said about, South Africa. We've been talking a lot about Afghanistan, but yeah, let's appreciate this, that, this is the first time they're actually losing the chokers tag in a way that they're actually reaching the finals of a World Cup. So big Today thing for I South took Africa. Actually, today I took a sick leave. I thought it will be a long, drawn-out match. It will be Afghanistan trying to defend some 120 kind of total. Like I said, you all overestimated Afghanistan. How have you overestimated them? They were very close to reaching the ODI World Cup final, and here also they reached semi-finals. How have you overestimated them? They played better cricket than any other Asian side except India. So Afghanistan has been overestimated. People are thinking that they are going to the finals. It's a big thing that they even came till the semis. They had a lucky win against Australia. I mean, even the win against Bangladesh was okay. I don't think anyone here thinks it was a lucky win against Australia. The reason I said that, I mean, it was a one-off thing, not a lucky win against Australia. But the fact that they lost so badly, they underperformed, like anything, I feel is we overestimated, and they're not maybe that good that we'll expect them to come and do well in the semis as well. England players have been playing on a spin track, but how did they bat in Ahmedabad Test matches? Like they were folding out for 100 all out. Why was that happening? Now because the spin conditions were alien to them. Yeah, okay. I mean, see, you can blame the conditions if you want, but you cannot deny we'll the fact that Afghanistan did not play badly. I will blame the conditions. नहीं बेसिकली प्रतीक क्या हुआ कि वही वाली बात हो गई ना कि सेमीफाइनल में आते ही वो जो बिग मैच प्रेशर है वो हैंडल ही नहीं कर पाए, और पूरे टूर्नामेंट में 2 के अलावा किसी की बैटिंग नहीं आई थी, तो वो आज सारे एक्सपोज हो गए. ऑब्वियसली पिच से हेल्पफुल थी पेसर्स के लिए, बाउंस ऊपर नीचे था, मूवमेंट भी था, और चूंकि उनकी बैटिंग भी नहीं आई थी, और मतलब होता ही है, मतलब ये एसोसिएट नेशन जो नए नए आते हैं उन लोगों के साथ ये होता ही है. जैसे केनिया वर्सेस इंडिया जो सेमीफाइनल हुआ था वो भी ऐसा ही हुआ था. बांग्लादेश वर्सेस इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल भी ऐसा ही था. तो
it's good they have qualified till semi-finals, long way to go for them. वही तो, I mean, But it's वो really होता good ही है, that they हाँ. reached semis, right? I mean, that's a big thing in itself. लेकिन वो उतनी अच्छी टीम नहीं है यार कि वो लोग और भी कुछ कर लेते. I mean, इतना कर लिया अच्छा उन्होंने, ये बहुत है. ठीक है, अभी अफगानिस्तान पे डिग्स लेना थोड़ा बंद करो गाइस. आई थिंक श्रेयांश भाई और कुणाल ने जो बोला ठीक है, आई काइंड ऑफ एग्री विद इट, नहीं बट डिग्स थोड़ा डिग्स नहीं ले रहे, मतलब सच बता रहे हैं भाई. मतलब आप वो हो ही जाता है, मतलब भाई, हर बड़ी the टीम reality, के हाँ I mean, मतलब नहीं नहीं ऐसा सही होता ही बात है. है, सही the thing बात is, है. मतलब आज तक का lost to the इतिहास है conditions. भाई. हाँ, आज तक का इतिहास है यार. होता ही है. कल नहीं भी नहीं नहीं हमारा सही रात बात को है. प्री मैच कॉल में वही डर था कि यार ये सेमीफाइनल का प्रेशर लिए नहीं डूबे. और 56 ऑल कल आउट तो सबने बेसिकली वही है. अफगानिस्तान ही प्रेडिक्ट किया था, लेकिन हमारे प्रीव्यू में एक्सेप्ट मी, नहीं, आई वाज द ओनली वन हु प्रिडिक्ट प्रेडिक्टेड साउथ अफ्रीका. लेकिन अरे तो ये तो प्रिडिक्ट तो किया अपसेट था, है एक तरह लेकिन से. हाँ प्रिडिक्ट ये किया था, अपसेट तो लेकिन बिल्कुल वही नहीं बात थी. हाँ प्रिडिक्ट है. किया था, Emotional प्रिडिक्ट and करने किया था. predict सपोर्ट कर रहे थे Afghanistan just for साहब, the अभी भी हम underdog. चाहते यही थे. और यही बोला था हम्म कि बस वो सेमीफाइनल का प्रेशर नहीं आ जाए. और वही हो गया एक्चुअली में. इस सेमीफाइनल का प्रेशर तो मेरे हिसाब Semis से में सिर्फ finals में तो गुरबाज पे pressure आया आता था, ही है. जिसने एक एक्चुअली अच्छी ड्राइविंग बॉल पे अननेसेसरी आउट हुआ. उसके नहीं अलावा नहीं तो पिच का ही मैं बताता हूँ था. विलन ऑफ द मैच कौन है. अभी मैं मैच पे आता हूँ ना. विलन ऑफ द मैच, अब ये जनरलिस्टिक टॉक्स तो हो गए हमारे अबाउट द मैच, लेकिन साला ये करीम जन्नत फ्रॉड ऑफ द बिगेस्ट लेवल. साला इसको ये मतलब ही इज मिसिंग द बॉल बाय दैट मच इज द मार्जिन ही इज मिसिंग द बॉल बाय. Tabriz Shamsi has bowled a normal ball which he is not able to see. I think he's blind or something, because that he was the set batsman. Karim Jannat was the set batsman, and him and Rashid had a partnership of around 20 to 25 runs, which I thought if they can just take it a little bit longer, they can reach 80 or 90. If they could have even reached 80, that would have been a competitive target. Don't go by what happened in last 5 overs of South Africa chase. It was a tough wicket to bat. It's just Afghanistan gave away. They didn't bowl to the line and lengths. But Karim Jannat, what did you do, man? You just needed to stay there for some more time and give some support to Rashid Khan, who had just played a beautiful cover drive to Rabada. You just needed to stay there for your country, but you did not. And this has been the problem of Afghanistan team from the starting. Remember 2020-21 World Cup in Dubai? They could have beaten Pakistan. 24 needed in 12 balls. Karim Jannat finished it in 4 balls. And is the worst cricketer in Asia. I'm telling you, he's the worst cricketer ever in Asia. He doesn't bowl, doesn't catch, doesn't bat. What is he there for in the team? And how is नाम Najibullah Zadran not in this team? I ask this नाम में question. जन्नत है ना. Afghanistan have नाम में themselves to जन्नत है. blame नाम में for this. जन्नत है इसलिए खेल रहा है वो. हमें पता चला ना, असगर अफगान का रिश्तेदार है इसलिए खेलता है वो. आई गेस अच्छा, हर जगह होता है ये. जो कि नजीबुद्दीन जादरान बट देयर इतना वाज अ जबरदस्त फेयर प्लेयर है, असेसमेंट, बिकॉज इतना बहुत सारे जबरदस्त एक्सपर्ट्स भी यही कह बैट्समैन रहे है. थे कि इट वाज, अगर कोई गुड साइड होती तो यू वुड एक्सपेक्ट 100-110. So that's why they were also saying it was not a good advertisement. It was a more difficult pitch than New York, they were saying. Yeah, more than advertisements, Afghanistan are not that good. You have to accept that. 60 run की तो नहीं Kunal, नहीं किया. And It is like 100 run बन जाते. Kunal is Because sledging Actually, Pratik like Nortje was sledging it's Rashid okay, Khan it's okay. today. One day they Really, will man, beat, that's a sledge. And one day Kunal, they'll beat all of the teams. Kunal If you is want, playing I in his mean, IPL mood नहीं, today. this is मेरे को my मेरा एक क्वेश्चन है, ये टॉस पे बैटिंग के फैसले के बारे में हाँ आपको क्या बोलना है? अगर ऐसा पिच था तो अफगानिस्तान एग्जैक्टली, कुड हैव बोल्ड बहुत फर्स्ट सही क्वेश्चन एंड है यू नो शायद भाई. रिस्ट्रिक्टेड साउथ अफ्रीका, और फिर आराम से चेस कर लेते क्योंकि ये टारगेट कम होता. रिजिड माइंडसेट है ना. मतलब ये टीम्स को मतलब एक वे मिल गया जीतने का. हाँ. दे डोंट अंडरस्टैंड दे कैन विन फ्रॉम एनी अदर वे. दैट्स वेयर मतलब कि आई विल से दैट मिनो मेंटालिटी really actually showed, because they thought कि they can win only by one way, by batting 15 overs 90 runs, then scoring 130 140 and then defend the target. But क्योंकि here जिस on हिसाब this से pitch, फजल हक और नवीन उलक स्विंग करा रहे थे, साउथ अफ्रीका भी 20 पे 4 हो सकता था अगर हाँ, ये बैटिंग बहुत फर्स्ट अच्छा हाँ करते. पॉइंट है कि इतना तो हाँ असेस कर हाँ लिया होगा बैटिंग उन्होंने कंडीशन कि तो अब उतना बैटिंग आसान नहीं थे. डिफिकल्ट होगी, तो क्यों नहीं अपने बॉलर्स को चांस दिया. वेरी गुड पॉइंट. पेसर्स विकेट है भाई. इस पे तुम कौन, पहले तुमने लॉकी फर्ग्यूसन को देखा हुआ है, उसने फर्स्ट बॉलिंग में मेडन डाला था, 4 मेडन. तो यू शुड अंडरस्टैंड कि पेसर्स विकेट है, वी शुड ऑलवेज बोल फर्स्ट. एंड साउथ अफ्रीका तो इवन दे वर इवन डम. चोकर मेंटालिटी शोड, दे आल्सो वांटेड टू बैट फर्स्ट. कैप्टन ने आके बोला पोस्ट कॉन्फ्रेंस में, हम भी बैटिंग ऐसे फर्स्ट करते हैं, लकीली वी लॉस्ट द टॉस, ऐसा बोल रहा है. टॉस पे उसने बोला है, मार्करम ने, उसका एकदम मुंह उतर गया जब अफगानिस्तान टॉस जीत गई. वो बोल रहे हैं ओ नो, मैं तो टॉस हार गया, मैं तो मैच हार गया. बट गुड टू सी, लाइक अब बहुत सारे सेमीफाइनल का एक्सपर्ट्स. प्रेशर भी तो था, राइट? आई मीन
ठीक है, maybe they're thinking about the semi-final pressure also. Knockouts में it's always recommended to bat first. But good to see experts were But showing it was sympathy for Afghanistan. So Kunal is not an expert, but Ricky Ponting was saying that उनका schedule बहुत tight था और plus क्योंकि वो लोगों ने अभी नहीं तक नहीं चीजें यार, ये अचीव नहीं सब करी गलत है। बात है। देख yeah, हाँ यार, yeah, आज अगर just because नहीं नहीं Afghanistan अगर इतना आज खराब खेला, आज now people are नहीं, blaming ये the गलत conditions. ये वो तो भाई गलत चीज है। खेलना तो आज ये अगर fair जीत point जाते है क्योंकि अगर आज आप अगर जीत जाते तो कोई शेड्यूल की बात नहीं करता। अब हार गए 56 पे ऑल आउट हो गए तो हाँ, अपन वही तो बात है. This शेड्यूल is ये like, सब बातें you know, करते being हैं, like तो a गलत sore है यार। loser, you're blaming the मुझे समझ नहीं conditions आ रहा and आपको everything else. अफगानिस्तान के हारने पे दुख हो रहा नहीं, है आप नहीं, लोगों को या प्रतीक- इंडिया को अरे- अफगानिस्तान नहीं अरे मिली गलत इसके लिए है। आप गुस्सा निकाल रहे हैं बट प्रतीक अरे ऑस्ट्रेलिया का जो शेड्यूल था फॉर दैट मैच It was वर्सेस even more इंडिया, cheaper, right? ऑस्ट्रेलिया का जो शेड्यूल था दैट वाज अरे इवन हम तो टफ. खुद दुखी हैं, हम दुखी हैं और दुख में ही गुस्सा देखो निकाल रहे बड़ी हैं टीमें कि 100 यार मैच खेलती है साल 56 में। ऑल मैं आउट हो सिर्फ गए। इतना बोल रहा हूँ, ये भी एक वैलिड पॉइंट है कि अफगानिस्तान का शेड्यूल इतना टाइट था, प्लस उनको ऐसे इमोशंस भाई हैंडल नहीं कर पा सुपर रहे थे। 8 वो का बहुत शेड्यूल सारे ही वैसा प्लेयर्स था. अच्छे से सोए नहीं थे, लगातार डेढ़ भाई, डेढ़ दिन में मैच बिल्कुल सही talking बात about है. emotions, शेड्यूल South Africa बहुत सारे टाइट था। close games थे भाई. This is the first game South Africa से close नहीं था. You're not talking about that. मैं सिर्फ बता रहा हूँ रिक्की पॉन्टिंग ने क्या कहा, नहीं, नहीं, मेरा नहीं. ओपिनियन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया भी नहीं opinion ये सोई है थी कि इंडिया के conditions मैच की के वजह पहले. से अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया भी नहीं नहीं खेल सो पाया। पाई थी भाई, और ऑस्ट्रेलिया तो एक दिन अफगानिस्तान पहले भी ही आई थी, right? बांग्लादेश मैच के पहले नहीं सो पाई थी क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया से जब जीती थी तो उन्होंने रात भर पार्टी वार्टी किया था. वो लोग भी नहीं सो पाए थे. तो नहीं सोना तो इस वर्ल्ड कप का थ्रू आउट एक ट्रेंड रहा है क्योंकि ये मैचेस मेरा एक्सक्यूज ऐसे नहीं है, टाइम्स. मेरा एक्सक्यूज कंडीशंस है। मैं बता रहा हूँ रिक्की पॉन्टिंग ने नहीं, क्या कहा था। कंडीशंस नहीं, मतलब कि ये तो देखो डे मैचेस हो रहे हैं सुबह 9:30 बजे, तो बहुत टीम्स होंगी जो नहीं सोएंगी. एक्चुअली इनको आदत हो गई है आईपीएल में रात के हाँ, मैचेस वो भी खेलने की. बोला ये था 2 रोहित बजे शर्मा ने। दोपहर में उठते हैं, तो बहुत टीम्स होंगी. रोहित शर्मा ने में भी अफगानिस्तान वाले मैच में बोला था, आई हैव वोक अप एट 6 AM, आई एम नॉट यूज्ड टू. ठीक है भाई, वो सबके लिए इट्स अ चैलेंज, तो आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ फैक्टर. आई होप कल का वैसे पिच, आई मीन इंडिया वाले मैच का पिच ऐसा ना हो, लाइक इट शुड बी अ गुड बैटिंग कॉन्टेस्ट। नहीं, वो तो 180 तो डिफरेंट बनना है। वेन्यू है प्रतीक. वी न्यू दिस वेन्यू एंड दिस वाज द वर्स्ट पिच. आई टोल्ड ऑन फ्राइडे इन व्हाट्सएप कि भाई दिस इज द वर्स्ट पिच और यहाँ पे जो भी सेमीफाइनल होगी वो टीम फंसेगी. भाई रदरफोर्ड से सबको बैटिंग क्लास लेनी चाहिए। इस जगह पे उसने 24 for 5 से 150 कैसे बनाए थे, मतलब वो जानना डैरिल पड़ेगा। मिचेल बॉलिंग करने आ गया था, तेरा फेवरेट डैरिल मिचेल, इसीलिए उसने बना दिया था, नहीं तो वो भी ये नहीं ठीक है. बना पाता. By the way, I did not see South Africa के bowling वैसे. How was that like? I mean, I just saw highlights. They were bowling हाँ, really well, right? मतलब I just want to मेक अ पॉइंट हियर they कुणाल. really killed मैं बताता Afghanistan हूँ starting में. मैं बताता हूँ साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बॉलिंग के बीच में क्या डिफरेंस था. साउथ अफ्रीका वेर हिटिंग द स्टंप्स, दे न्यू दैट. So initially both team misread the pitch. South Africa played Maharaj and these Afghanistan played Kharote for because both thought this will be a turning wicket. I don't know why they thought that, but both thought this will be turning wicket. But South Africa realized their mistake just after second over when they gave to Maharaj. They understood this is not a turning wicket, and then they bowled all pacers and all pacers bowled at the stumps. सबसे अमेजिंग बात क्या है, मोस्ट अमेजिंग थिंग, 9 out of 10 wickets that fell for Afghanistan were hitting the stumps. They were either bowled, they were either LBW or Azmatullah Umarzai who got caught. That ball was also on the stumps. Only one bouncer got a wicket. Whereas if you see Afghanistan bowling, they were trying slower ball outside of stump. It doesn't make sense. Dwayne Bravo से ओवर कोच्ड हो गए हो क्या? मतलब ड्वेन ब्रावो ने तुम्हें बहुत ज्यादा सिखा दिया. एक भी बॉल स्टंप पे नहीं है यार. नवीन ऐसा यॉर्कर नहीं है एक्चुअली में, वो 56 रन के बाद कॉन्फिडेंस ही लूज कर गए यार, इसलिए हाँ। उन्होंने कहा विकेट नहीं मिले, 4 ओवर हो गए, इसलिए वो स्लोअर बॉल फेंक दी क्योंकि रन ही नहीं थे ना, 56 ही शिखर रन ने थे यार. सही बताया साउथ अफ्रीका बॉलिंग. बस एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि मार्को यानसन वाज एक्सेप्शनल, क्योंकि वो थोड़े बाउंस भी दे रहा था बीच बीच में कंफ्यूज करने के लिए कि बॉल अगली फुल आएगी या शॉर्ट आएगी. तो मार्को यानसन ने सबसे अच्छी बॉलिंग करी और उसने ना रूम दिया. तो बहुत अनफॉर्चुनेट था कि 2 बैट्समैन तो ऐसे आउट हो गए कि लाइक उनको रूम नहीं मिला और ग्लव से लग के कीपर के हाथ में चले गई पीछे. सो मार्को यानसन की हाइट का उसने बहुत सही यूज किया. एंड ही विल बी द मोस्ट डेंजरस बैट्समैन फॉर इंडिया आल्सो. कीपर ने तो एक ही कैच लिया, दैट वाज वो डिकॉक के लिया था, खरोटे का. एक होगा, खरोटे दो का नहीं एक. होगा. हाँ, तो बाकी तो एलबीडब्ल्यू थे. शामसी आया, तुम शामसी को भी यार नहीं खेल पा रहे हो. शामसी का थोड़ा सा क्योंकि हम उस टाइम क्या अचानक से एलबीडब्ल्यू पे एलबीडब्ल्यू अपायर्स कॉल. वही 50 for 6 से हम लोग होप कर रहे थे कि इस तरह 90 तक ड्रैग हो जाए, 90 100 तक. बट शामसी को 2 बार एम्पायर्स कॉल पे एम्पायर ने आउट उसके साथ दिया, तो वो थोड़ा सा खला. बट मैच तब तक खत्म हो चुका था एनीवेज, तो उसका अफेक्ट नहीं हुआ. जन्नत यार, मतलब बेकार है यार जन्नत. ये क्यों यार खिलाते हैं इसको भाई? कब 28 for 6 तब तो लग रहा होगा 40 रन भी नहीं बनेंगे.
हाँ मतलब अच्छा किया एक्चुअली राशिद और जन्नत ने, थोड़ा और खेल लेते ना तो I mean, फंस सकता था हम मैच। डिस्कस कर रहे थे कि एडिलेड वाइब्स है इस मैच में 28 for 6 से, तो 36 ऑल आउट वाइब्स, बट या मतलब एक बार मजा आ रहा था, मतलब जब जैसे थोड़ी सी पार्टनरशिप बनी थी जन्नत और राशिद खान की, हाँ देवांशु भाई का मैसेज आया था कि क्या आज राशिद खान कपिल देव बनेगा तो एक्चुअली अब देखो ना टर्निंग पॉइंट क्या था मैच का ना, तो रबाडा केम एंड ही पिक 2 विकेट्स ऑफ नाबी एंड उमर जाई, जदरान, इब्राहिम जदरान आई थिंक, उमर जाई, नहीं इब्राहिम जदरान एंड हाँ हाँ नाबी, हाँ हाँ, मोहम्मद नाबी, टॉप he ऑफ picked ऑफ, टॉप ऑफ ऑफ, हाँ both balls were exactly the same. One bounced a little bit more and hit top of off, one hit the off stump in the center. Both balls were exactly same. नाबी का तो स्टम्प्स कार्टव्हील हो गया भाई, विकेट कीपर तक पहुंच गया वो स्टम्प्स. So that was such a perfect test match bowling, and you needed a test match bowler like Kagiso Rabada or Marco Jansen. Look at the ball Norkia bowled to Rashid Khan, top of off stump destroyed, gone for cartwheel, gone for to roam around Trinidad. उसमें भी नाबी का ज्यादा वो फॉल्ट था, क्योंकि वो तो पेस से भी बीट हुआ था और स्विंग से, सीम से भी बीट हुआ था। हालांकि जदरान थोड़ा एटलीस्ट उसने बैट सही टाइम पे लाया था नीचे, पर बॉल कर्व होके चली गई अंदर। लेकिन नाबी का तो बैट भी इतना लेट आया था, तो नाबी का तो बहुत क्वेश्चनेबल फॉर्म रहा है, लाइक उसको बॉल दिख नहीं रही होगी इतना फास्ट। तो उसको राशिद खान ने रिसेंटली बोला था कि फिर से एक और वर्ल्ड कप खेलेगा, तो उसके बारे में उनको वापस से विचार करना चाहिए। Nabi ke So South Africa that's looks the so wrap, I think. good. Anyone else South wants to Africa talk looks about that? so good, good batsmen, good fast bowlers, good अफ्रीका में वही बोल रहा हूँ भाई, and लास्ट वर्ल्ड players. कप में भी They have a उन्होंने हमें really good हराया chance. था, तो बहुत चैलेंज रहेगा जो भी टीम पहुंचेगी इंडिया और इंग्लैंड में से उनके लिए। क्लासन और मिलर की तो जरूरत भी नहीं पड़ी भाई, इनको हम इतना कल बोल रहे थे प्रीव्यू में, क्लासन क्लासन क्लासन, सला आया ही नहीं क्लासन। आई विश मतलब अफगानिस्तान ने फर्स्ट बॉलिंग ली होती यार। भाई आई विश वो रिव्यू एटलीस्ट करके मार्करम को आउट कर लेते, एटलीस्ट मिलर को या हाँ, क्लासन को 6 आने पर 2 हो जाते थे, 6 पर 2 हो जाते थे, 6 पर और 2 थे कुछ। रन थोड़ा भी नहीं बन मजा रहे थे आता साउथ मैच में. अफ्रीका से। 4 ओवर में 8 रन थे, बहुत स्लो स्टार्ट किया था। सच में आज लग रहा है कि आई वेक अप अर्ली फॉर नथिंग, कुछ हुआ ही नहीं, मजा नहीं आया. भाई Hope the सीरियसली second मैंने match is सिक good. लीव लेके सोचा कि आज मैच देखूंगा, साला उस दिन बांग्लादेश वाला मैच 11 बजे तक चल रहा था, आज साला 8 बजे खत्म हो गया है मैच। Yeah. मतलब इट्स वेरी पर डिसअपॉइंटिंग अभी भी तुम्हें लगता नहीं Management इसमें कुछ भी disappointed थोड़ा everyone. पिच की गलती थी, लाइक उनको मेक श्योर करना चाहिए था कि अच्छा बैटिंग ट्रैक मिले सेमीफाइनल जैसे मुझे मैच तो के लगता है लिए। अफगानिस्तान सबस्टैंडर्ड भाई प्लेस साइड थी. अभी लोग क्या टर्नर कोट हो रहे हैं, देख यही पिच की सब तारीफ कर रहे थे कल तक, या ऐसी पिचेस की लोग कल तारीफ कर रहे थे। इट हैज प्रोड्यूस्ड इक्वल क्रिकेट, इट हैज गिवन मोर चांस टू बॉलर्स। सब लोग कल तक ये पिच की तारीफ कर रहे थे, और आज आई कैन ऐसा हो गया तो अब लोग तारीफ करना बंद कर देंगे। मतलब आई कैन बेट इसको बिलो एवरेज रेटिंग मिलेगी आईसीसी से, आई कैन बेट। नहीं, वो जो भी मिले रेटिंग, तो सारे पिचेस ही बेकार है इस बार तो वर्ल्ड कप में। मुझे तो सेंट लूसिया को छोड़ के, सेंट लूसिया एकमात्र पिच है, और थोड़े बहुत बारबेडोस ठीक है, नहीं, जहाँ इंडिया बाकी ऑस्ट्रेलिया सारे हुआ था वो पिचेस बहुत बेकार अच्छा है। पिच था, जहाँ इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच हुआ था अभी रिसेंटली, बारबाडोस में, हाँ, वो बहुत अच्छा पिच था। बारबेडोस और सेंट लूसिया थोड़ा बहुत ठीक पिचेस है, बाकी सारे पिचेस बेकार है भाई, थर्ड क्लास पिचेस हैं, नॉट सूटेड फॉर टी20 क्रिकेट, मे बी टेस्ट क्रिकेट यस, बट आप इसी को बोल रहे हो कि पिचेस अच्छे हैं इसीलिए ये अच्छे परफॉर्म कर हिंदी रहे हैं, कमेंटेटर्स तो मिलोज यही अच्छे बोल रहे थे, दैट्स व्हाई यू प्ले इन इंडिया, बिकॉज हम इतनी मेहनत करके ऐसे पिचेस बनाते हैं, प्लस ना हमारे ऐसी बारिश होती रहती है, सो भाई लेकिन आईपीएल में कहा 250 रन बन रहे थे. व्हाई डू हाँ वो भी, आई डोंट थिंक मतलब वैसे मैच बोथ आर अदर भी एक्सट्रीम्स खेलना चाहिए. एक्चुअली। अगर तू देखा तो लास्ट वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में था ना, दैट वाज द बेस्ट एक्चुअली। नहीं, ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया में भी बहुत अच्छा हुआ था, वहां कभी भी ऐसे 400 नहीं बन रहे थे, वी बहुत आर अच्छे 250 टॉकिंग 300 अबाउट के विकेट्स थे। T20s अभी, राइट? हाँ बट एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में 160 बन रहे थे एग्जैक्टली, हाँ, 160 150, दोज वर एक्चुअली वेरी गुड नेक्स्ट वर्ल्ड कप मैचेस। श्रीलंका और इंडिया में This होगा ना, has तो वो अच्छा होगा। this has been a slightly very different World Cup also from that aspect. काफी सीनियर प्लेयर्स खेल रहे थे, काफी प्लेयर्स का लास्ट वर्ल्ड कप था, हम लोग हाँ, इतने बड़े हाई स्कोरिंग आईपीएल्स आ रहे थे, तो they are very, it's a और big डिफरेंट contrast. T20 क्रिकेट था जो हम देखते हुए आईपीएल में, उससे बिल्कुल अलग।